A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. I hope all of you are well and studying at home. Dear students, in the previous lecture of economics, we have started our 12th chapter of macroeconomics, that was balance of payment. In the previous lecture, we have discussed about the concept of balance of payment, its introduction, its brief history, and we have discussed about the components of balance of payment. We have seen that there are three components of balance of payment: current account, capital account, and official reserve account. And in the previous lecture, we have discussed about the complete current account. What was a current account? It was the account which used to record all such transactions which do not lead or increases or decreases the status of assets and liabilities of a country in the concern to the rest of the world. And thereafter we have discussed about its components such as import of goods, import and export of goods. Second, import and export of services, in which we have discussed about the factor incomes and non-factor incomes, and the third and the last one was the unilateral or the current transfers. Dear students, in today 25th lecture, we are going to discuss about the capital account and the official reserve account. The very first question arises is, what is the capital account? So capital account records the receipts and payments of such transactions which causes an impact on asset liability status of a country in relation to rest of the world. वो अकाउंट जो कि क्या करता है बेटा, जो कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कि एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उस अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं. देखिए आगे बताया, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स ऑफ अ कंट्री आर ईदर रेज्ड और रिड्यूस्ड. या तो ये एसेट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं या फिर क्या होती हैं, ये डिक्रीज होती हैं. एंड व्हाट कैन बी इन द सिंपल वर्ड्स, सी वी कैन से दैट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लीड टू फ्यूचर क्लेम्स. तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे फ्यूचर क्लेम्स को जनरेट करते हैं, वो हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं. See further, there are further some components of the capital account. So components of capital account are broadly classified into two parts: borrowings, and the second one is the foreign investment. You can see in the flow chart as well that borrowings are further classified into two parts, thereafter investment in two parts, and thereafter the three other elements are there. So we are going to discuss them one by one. The very first one is the borrowings. We all know what are the borrowings, but there are two types of borrowings. The first one is the external commercial borrowings. So dear students, what is the external commercial borrowings? The borrowings that are made from rest of the world or to rest of the world at the existing market rate of interest is known as external commercial borrowing. ठीक है, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पर जो भी बोरोइंग्स होती हैं उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बोलते हैं. देयर आफ्टर द सेकेंड वन, दैट इज द एक्सटर्नल असिस्टेंस. एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल असिस्टेंस? इट रेफर्स टू बोरोइंग्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस. वो बोरोइंग्स जो कि असिस्टेंस, दैट मीन्स कि सपोर्ट के हेल्प में आपको हेल्प के फॉर्म में प्रोवाइड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस. अच्छा, अब हेल्प कैसे होती है, सपोर्ट कैसे होती है? सो एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो बोरोइंग्स आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड होती हैं या प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं. आगे देखिए, बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अराइजेज एज अ लाइबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो बोरोइंग्स आपकी वो क्रेडिट साइड में या क्रेडिट आइटम्स में रिकॉर्ड होती हैं. ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इसने आपको बताया फॉरेन इन्वेस्टमेंट. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. द फर्स्ट वन इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है किसके, फ्रैक्शंस के फॉर्म में इन सम पार्ट ऑफ ओनरशिप, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एंड द सेकेंड वन इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज FDI. इट रेफर्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की किसी पर्सन की ओनरशिप डोमेस्टिक इकोनॉमी में के किसी फर्म में, किसी
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बेटा कंप्लीट ओनरशिप क्या होती है, इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए अदर कंपोनेंट्स में क्या बताया इसने बेटा, NRI डिपॉजिट्स हैं, एंड हु आर NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। सो वट एवर द deposits are there of NRI people who generally used to come to their country and visit their country, so they used to deposit some amount so that they can be that amount can be used by them in the time of requirement. So all these NRI deposits are also considered or included in the capital account. Thereafter the fourth one, that is the banking capital, and see in this बैंकिंग कैपिटल रेफर्स टू फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स के पास एसेट्स हैं कहाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उनको हम लोग बैंकिंग कैपिटल बोलते हैं। ओइंग टू विड्रॉल ऑफ फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जब बैंक्स इन जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब इन एसेट्स को क्या करते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो क्या होता है, देयर इज़ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जो उन्होंने ये एसेट परचेज करी, जब इनको सेल आउट करते हैं तो क्या होता है, देयर इज़ द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड जो हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व है कंट्री का वो इंक्रीज होता है, एंड जस्ट वाइस वर्सा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये क्या होते हैं देखिए, इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ये क्या है, जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमोडिटीज़ को परचेज़ करते हैं, गुड्स को परचेज़ करते हैं, बट इन रिटर्न आप अभी कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। और जब इसका रीपेमेंट होता है तो जो आपका डेप्ट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ BOP। तो क्या होता है बेटा, ओवरऑल बैलेंस इज इक्वल्स टू करेंट अकाउंट बैलेंस plus capital account balance plus errors and omissions. Errors and omissions are included as whenever the human work is involved, so there are some chances of errors and omissions. Now the third element of the BOP account is the official reserve account. अब देखिए बेटा, इसमें overall balance is finally reflected in the official reserve account of RBI. अब जो overall balance आया है वो कहाँ reflect होता है, RBI के official reserve account में represent होता है। क्यों होता है, बिकॉज RBI इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, टू कंडीशंस आर हियर। पहले हम लोग कंडीशन 1 देखेंगे बेटा। समटाइम्स द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बहुत बार क्या होता है, जो आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है हम उसको क्या दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट का पार्ट दिखाते हैं, किसके, BOP के। इफ ऑफिशियल रिजर्व्स आर शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट देन BOP इज ऑलवेज बैलेंस। और अगर ऐसा होता है कि हम उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा BOP है वो हमेशा क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। इन केस ऑफिशियल रिजर्व्स आर नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, अगर ऑफिशियल जो आपके और रिजर्व्स हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो नहीं होते हैं, तो क्या होता है बेटा, द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज सेपरेटली प्रेजेंटेड एंड क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन। फिर इनको सेपरेटली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इनको टाइटल देते हैं बिलो द लाइन। ठीक है, आगे देखिए। इन सच सिचुएशन द करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स टुगेदर मे शो अ सरप्लस और डेफिसिट इन BOP। प्रीवियसली क्या था, आपका BOP बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका BOP सरप्लस भी हो सकता है। जब पेमेंट्स कम होंगे, है ना, इनफ्लो ज़्यादा होगा तो सरप्लस BOP होगा, और जब पेमेंट्स कम होंगे और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो वो डेफिसिट BOP होगा। इसके बाद देखिए इसने क्या बताया, BOP ऑलवेज बैलेंसेज व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में हमेशा बैलेंस होता है, लेकिन जब इसको सेपरेटली शो करते हैं तो ये कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि ये बैलेंस होगा। मोस्टली टाइम या तो ये डेफिसिट शो करता है या फिर ये सरप्लस शो करता है। ठीक है, और इसी वजह से जो आपका ओवरऑल बैलेंस बनता है वो बनता है करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 0। कब, जब ये आप इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो करते हैं तब, और जब शो नहीं करते हैं तो ईदर इट विल बी द डेफिसिट वन और द सरप्लस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैपिटल अकाउंट
of BOP, its meaning, its components, in which we have discussed about borrowings, investment and the other components, and then in the last we have discussed about the official reserve account. This is all about today. God bless you all.